تمام کیسز میں نئے نیب آرڈیننس کے تحت عمران نیازی نے اپنے آپ کو اور اپنے وزراء اور مشیروں کو این آر او دیا ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے حساس اداروں کے خلاف زبان استعمال کر کے ٹارزن بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ منہ کے بل گریں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کے اہم اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر غور۔ نیب قوانین میں ترامیم سے حکومتی وزراء کو این آر او دیا گیا، مسلم لیگ نون کا الزام۔ کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پوچھیں گے سینئر تجزیہ کار نسیم زہرا سے، تجزیہ کار اوریہ مقبول جان سے اور دفاعی تجزیہ کار جنرل اعجاز آوان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ حکومت نے نیب قوانین میں اہم ترامیم کر دی ہیں۔ صدر مملکت ترمیمی آرڈیننس جاری کر چکے ہیں۔ نیب قوانین میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس سے دکھائی دیتا ہے کہ نیب کے دائرہ کار کو محدود کر کے اس کے پر کاٹ دیے گئے ہیں۔ اب نیب نہ حکومت اور نہ ہی اپوزیشن کے لیے کوئی بڑا خطرہ بن سکے گا۔ بیوروکریسی اور کئی اہم ادارے نیب کی دسترس سے باہر ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزراء بھی نیب کی پہنچ سے دور رکھے گئے ہیں۔ ماضی میں جب نیب قوانین تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان کیا کہتے تھے؟ لیٹس واچ ہم۔ نیب کی آرڈیننس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں، پرائم منسٹر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ایک پرائم منسٹر جس کو خود فکر نہیں ہے کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، وہ نیب اسی نیب کو وہ ٹھیک ہے کہ ایماندار آدمی کا نیب کا ہیڈ بنائے گا، میرے نیچے یہ نیب دے، میں آپ کو 3 مہینے میں بڑے بڑے ڈاکو کو پکڑ کے دکھا دوں۔ دوسری جانب اپوزیشن نے نیب قوانین میں ترامیم کو حکومت کی جانب سے اپنے ہی وزراء کو این آر او دینا کہا ہے۔ لیٹس واچ اتاتار۔ وہ آٹے کا سکینڈل ہو، وہ چینی کا سکینڈل ہو، وہ ایل این جی کا سکینڈل ہو، وہ ادویات کا سکینڈل ہو، وہ بجلی کا سکینڈل ہو، ان تمام کیسز میں نئے نیب آرڈیننس کے تحت عمران نیازی نے اپنے آپ کو اور اپنے وزراء اور مشیروں کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سیاہ ترین این آر او دیا ہے۔ پر حقیقت یہ ہے کہ موجودہ ترامیم کا فائدہ صرف حکومت کو نہیں بلکہ اس سے اپوزیشن کو بھی بہت بڑا ریلیف مل جائے گا۔ کل ہمارے ساتھ پروگرام میں اس حوالے سے صحافی عارف حمید بھٹی نے کیا کہا، انہیں بھی دیکھیے۔ احسن اقبال تو بری ہو گئے، جو ان کے سارے کیس چل رہے تھے وہ تو کلیئر ہو گئے۔ اب 30 سال کے لوگوں پہ یہ مقدمے کر چکے تھے، اب باری اس حکومت کی تھی۔ اب انہوں نے این آر او اتنا بڑھا لیا، یہ آپ کو آنے والے چند دنوں میں کلیئر ہو جائے گا۔ اپوزیشن میں کہہ رہا ہوں اس کے خلاف صرف میڈیا میں بیان دے گی زندہ رکھنے کے لیے، اور کوشش کرے گی کہ جوید اقبال کی توسیع کو چیلنج کیا جائے۔ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں اپوزیشن کی مرضی ہے۔ جبکہ سینئر قانون دان اعتزاز احسن بھی کہتے ہیں کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کی زیادہ تر شقوں پر سیاسی جماعتیں حکومت سے متفق ہیں۔ لیٹس واچ اعتزاز احسن۔ دیکھیں، ایک بات تو کلیئر ہے، یہ معاملہ میری نگاہ میں، اور یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، میری نگاہ میں یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ ہی اس کو فائنل اس کا اب حل نکالے گی۔ آل پارٹیز میں ان میں سے کچھ معاملات پر ایگریمنٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی ایسا سول سرونٹ جس نے جینوئنلی آنیسٹلی اپنی طرف سے کام کیا ہو لیکن مس ججمنٹ ہو گئی ہو اس سے، اس کو اس میں نہیں آنا چاہیے کرمنل لا کے تحت۔ نسیم زہرا صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ آپ کی ٹویٹ میرے سامنے ہے، ایکسٹینشن آف نیب چیئرمین ٹرم کین اونلی ہیو malicious intent. Giving this authority to PM further compromises NAB chairman's position, who would look to appease the authority giving extension. PM Imran Khan, this fraudulent move even military dictator Musharraf didn't opt for. Naseem Zahra صاحبہ، صرف پرائم منسٹر کا ہی کمپرومائزڈ مسئلہ ہوگا یا آپ کے خیال سے اب تمام لوگوں کو این آر او ملنے جا رہا ہے جیسے اپوزیشن کہہ رہی ہے؟ دیکھیے، تھینک یو فاریا۔ سب سے پہلے تو آئی تھنک پرائم منسٹر کو تو کوئی ذاتی طور پہ بالکل این آر او نہیں چاہیے، اور یہ اس وقت این آر او کا مسئلہ نہیں ہے۔ آئی تھنک ایک پرنسپل کو ذرا ڈسکس کر لیں کہ نیب چیئرمین جو ہے، مچ لائک دا ججز آف دا ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ، ان کی ایک میعاد جو ہوتی ہے ڈٹرمنٹ، یعنی 3 سال کی، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کی ایکسٹینشن وغیرہ کا سوال نہیں ہوتا، تو اینڈ دیر ان دا بزنس آف ڈسپینسنگ، ٹیکنیکلی تو بزنس ہے ٹو ڈسپینس جسٹس، تو اس وجہ سے کہ کوئی کسی طریقے سے
पोजीशन और इनका जो रवैया वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि अगर आप एक्सटेंशन का द कैरेट इज हैंगिंग तो फिर नेचुरली ये ह्यूमन नेचर है, फरिश्ते भी होते हैं लेकिन इंसान नॉर्मली आपको मालूम है कि एक्सटेंशन के लालच में फिर क्या चीजें होती क्या नहीं होती। तो ऑलरेडी एक इतना कॉन्ट्रोवर्शियल ये पोजीशन है, तो और एक कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्डक्ट रहा है हर दौर में, हर गवर्नमेंट में। तो इस वजह से ये जो ये मामला है कि एक्सटेंशन देने का और जो नॉन एक्सटेंडेबल जो है उस लफ्ज को हटा देना, वो मेरी समझ से बाहर है बिल्कुल। देयरफॉर दैट इज द क्रिटिकल क्वेश्चन। जो बाकी बातें भी आप अपने प्रोग्राम में सुना रही थी, मुख्तलिफ लोगों का कहना कि ऑपोजिशन भी चाहती थी इसमें जो बाकी तरमीम हुई है, मसलन कि जो बेल है वो ट्रायल कोर्ट करेगा, और ये भी कहा 6 महीने में आप इसका फैसला करें केस का, और ये कि सवाब भी इख्तियार किसी हद तक जो है वो कंट्रोल किए हैं चेयरमैन के, एंड यू नो कोर्ट्स बढ़ा दिए हैं, उनके नंबर्स बढ़ा दिए। तो सम ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट जो कि ऑपोजिशन भी चाहती थी। वो जो फेमस या इनफेमस 37 पॉइंट्स थे तो उसमें ये बहुत पॉइंट्स थे। तो मेरा ख्याल है कि अगर डिस्कशन करनी है तो फिर जो चेयरमैन साहब की एक्सटेंशन है, आज ये है कल कोई और होगा, लेकिन आज के भी चेयरमैन के हवाले से आपको मालूम है और सियासत के हवाले से तो ये बहुत बड़ा, और मेरा ख्याल ये है कि ऑर्डिनेंस में सबसे अहम सवाल ये है। और बिफोर आई एंड ये देखिए कि इन सबको मालूम था कि 8 तारीख की तो उनकी म्याद खत्म होती है, तो फिर ये काहे को इतनी देर की है, यानी कि यू नो खींचते ले आए टिल द 7th। तो अब मतलब चेयरमैन की पोजीशन के हवाले से क्या दाल में कुछ काला है? That's a valid question to ask at this point. Right. So अगर एक नजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर डालें, कौन कौन सी ऐसी शिकें हैं जिन पर एतराज किया जा रहा है? Let's have a look. नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक जब तक नैब के नए चेयरमैन का तकर्रुर नहीं हो जाता उस वक्त तक मौजूदा चेयरमैन अपने ओहदे पर काम जारी रखेंगे। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की भी तशरीह कर दी गई है। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक जब तक ये बात साबित ना हो जाए कि मज़कूरा शख्स ने ये काम ज़ाती मफाद में किया है तो उस वक्त तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस में यह भी कहा गया है कि अगर किसी ने अच्छी नीयत से काम शुरू किया और उसके मतलूबा नताइज नहीं निकल सके तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की कोई तशरीह नहीं की गई थी। अगर कोई शख्स किसी मनसूबे में कवायद खिलाफ वर्जी करता था तो उसके इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करार देते हुए उस शख्स को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी जाती थी। एक और शिक जिस पर हर तरफ से एतराज किया जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि इससे नैब को बिल्कुल बेसरर सा इदारा बना दिया गया है, वो वफाकी और सूबाई काबीना के फैसलों को इस्तिस्ना देना है। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक वफाकी और सूबाई काबीना मुल्क की तरक्की के लिए कोई फैसले करती है और ब्यूरोक्रेसी अच्छी नीयत से इस पर अमल दरामद करवाती है तो नैब को इन मामलात में मुदाखलत करने या तहकीकात शुरू करने का इख्तियार नहीं है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि माजी में कई तरक्याती मनसूबे नैब की मुदाखलत की वजह से ताख़ीर का शिकार हुए। जनरल साहब, जिस वक्त बात होती थी नैब की बेहतरी की, नैब को ठीक करें और ये सभी करते थे तो तासुर ये था कि आप इसको मजीद स्ट्रेंथन करेंगे, आप इनकी अंदर मजीद इनको एम्पावर करेंगे। ये जो तरमीम है इसके बाद तो ये लग रहा है कि ये वाकई एक टूथलेस इदारा बनने जा रहा है। फरिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ज़ाहिरन जो तरमीम की गई हैं इनमें कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी होती है, पहले बात की गई थी कि अगर वो कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो नेक नियति भी मबनी है, या प्रोसीजरल लैप्सेस का लफ्ज यूज किया गया था कि प्रोसीजरल लैप्सेस की वजह से उनके अकाउंटेबल होल्ड नहीं किया जाएगा। अब एक नई इख्तरा आ गई है कि अगर उन्होंने नेक नियति से कोई काम किया है जिसका नतीजा गलत निकल आया है तो भी उनका एहतसाब नहीं होगा या उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सा, अभी औरिया मकबूल जान साहब इस पे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि वो ब्यूरोक्रेट कौन सा है जो प्रोसीजरल लैप्सेस करके किसी को फेवर करना चाहे तो ही कैन गेट अवे विद इट, और अगर वो अपनी इनकॉम्पिटेंस के कवर में रह के कुछ गलत काम करता है तो अगर आप इनकॉम्पिटेंस को वैलिडेट कर रहे हैं और अगर आप जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं विच इज इनकॉम्पिटेंस कपल्ड विद मैलिफाइड इंटेंशन,
अगर आप इन दो को एग्जोनरेट कर रहे हैं, इन दो को अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहे, तो फिर आपने ब्यूरोक्रेसी को तो एक लाइसेंस दे दिया कि डू एनीथिंग दैट यू वांट टू, यू कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल। इसी तरह जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और इन पे एक्शन नहीं हो सकता, तो देखें इस मुल्क में पार्लियामेंट का काम क्या, कानून साजी करना और जुडिशियस डिस्बर्समेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट उसको इस्तेमाल करना। अगर वो अपने सियासी मकासद के लिए किसी भी तरीके से कुछ करना शुरू कर दें और उनको कल अकाउंटेबल नहीं होल्ड किया जाता, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? तो योर ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट कि आप एक अदारे को टूथलेस बना रहे हैं, उसके इख्तियारात एक तरफ तो कम कर रहे हैं, एक तरफ उन्हें नॉन एक्सटेंडेबल टेन्योर की टर्म खत्म करके आप ये कह रहे हैं कि दे कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज नए चेयरमैन नैब का इंतखाब नहीं हो जाता। अब मौजूदा हुकूमत के दौर में जो लेड डाउन प्रोसीजर है उसके मुताबिक तो ये इत्तफाक कभी भी नहीं होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लीडर ऑफ द अपोजिशन से तो बात ही नहीं करना चाहते। वो समझते हैं वो विक्टिम, वो नैब के रेडार पे हैं, वो अंडर ट्रायल हैं, लिहाजा उनसे मशवरा जरूरी नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो कल एक प्राइम मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ द अपोजिशन कल वो आपस में अगर बाहम इत्तेफाक कर लेते हैं और किसी को एक्सटेंशन देना चाहें, क्योंकि नॉन एक्सटेंडेबल की टाइम खत्म हो गई है, तो फॉर गेटिंग फेवर्स, फॉर यूजिंग द इंस्टीट्यूशन एज दे विश टू, दे कैन गिव इट एक्सटेंशन। तो आप ये क्यों एक नई ऐसी चीज लेकर आ गए हैं जिससे अदारा मजीद मेरे ख्याल में कमजोर हो रहा है और उसकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि नैब के इस ऑर्डिनेंस के बाद किस पॉलिटिशियन को फायदा होने जा रहा है। राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। और ये मकबूल जान साहब, जैसे जनरल साहब राइटली सेड के ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आप हमें बड़ा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, हुकूमत काफ़ी अरसे से ये शिकवा करती रही है कि ब्यूरोक्रेसी नैब के खौफ से काम करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कारोबारी अफराद भी नैब से बड़े खौफजदा हैं। सो अब हम क्या ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी भी ज़बरदस्त काम करेगी और कारोबारी अफराद भी बड़ा अच्छा सब कुछ हो जाएगा? देखिए, ये जो पूरे का पूरा ऑर्डिनेंस है, इसमें बुनियादी तौर पर इसका चेयरमैन का जो इशू है, ये एक लोगों को दिखावा देने के लिए, धोखा देने के लिए है। असल मामला कुछ और है। पाकिस्तान की सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो घूमती है, उसकी करप्शन जो है ब्यूरोक्रेसी की पिवट के गिर्द घूमती है। आप अंदाजा करें कि सारी जिंदगी पॉलिटिशियन मर जाता है, उसको फाइल पढ़नी नहीं आती, उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि करप्शन कैसे की जाती है, किस तरह की जाती है। हमारे साथ मार्शल लगते थे, जर्नैल हजरात आते थे, 2-2.5 साल तक उनको कहीं आके काम का अंदाज़ा होता था, तब भी जाके पास ख़ास ऐसी चीज़ें थी पटवार के, दूसरी नहीं पता चलता था। तो जो सारे का सारा रास्ता दिखाने वाले, फाइलों को बेहतर तौर पर करने वाले, स्पीड ब्रेकर रिमूव करने वाले, ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और यही उस सारी चीज़ों को आगे लेके आते हैं। अब हुआ क्या है, आप देखें, अंदाज़ा करें कि इसमें आप जावेद इकबाल को अगले 100 साल भी लगा दिया जाए ना, तो वो सारे लोग राजी होंगे। पहली बात तो यह है कि CDWP और PDWP, वो जहाँ ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस होते हैं, वहाँ पर भी उसको भी वहाँ से निकाल के उन्होंने बाहर किया है कि कोई अब किसी को चेक नहीं कर सकेगा। इसको ब्यूरोक्रेट कहते थे, ये हमारी कलेक्टिव विजडम है। इसका मतलब यह है कि अगर 15 लोग इकट्ठे होके एक गलत काम करना चाहें, या अगर शहबाज शरीफ किसी को कह दे या नवाज शरीफ को कह दे कि ये काम तुमने करना है, और वो 15 का ग्रुप जो है या 16 का ग्रुप जो है CDWP का या PDWP का एक फैसला कर देता है कि हमने ये सब्सिडी देनी है या हमने ये प्रोजेक्ट अप्रूव करना है, तो अप्रूव कर देगा, तो कलेक्टिव विजडम में हो जाएगा। उसको कहेंगे एक्टिंग इन गुड फेथ। ये वही बात है कि जब आप पुलिस मुकाबला करते हैं तो पुलिस वाला कहता है मैं तो नेक नीति से कत्ल कर रहा हूं, मैं तो गुड फेथ में। अब गुड फेथ को नापने का पैमाना कौन रखेगा? कोई भी नहीं है, कहीं दुनिया में नहीं होता। दुनिया में अच्छा दूसरा होता था प्रोसीजरल। अब प्रोसीजरल लैप्सेस जो है ये आते हैं ऑडिट के अंदर। पूरी आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बेस करती है इस ऑडिट के ऊपर, पूरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कि आप देखें ना, आप क्यों टेंडर अवॉइड कर रहे हैं, आप क्यों मुख्तलिफ किस्म के रूल्स अवॉइड कर रहे हैं। वो कहेगा जी मसला सर यह है कि जी मसला यह है कि हमें दवाइयाँ की फौरन जरूरत थी, मैं दुकान पर जाके खरीद के ले आया। अब वो उस अपनी ईमानदारी को उसको साबित करना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे साबित करेगा जब तक वो रूल्स नहीं है। पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को आपने, और दूसरी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी का गठ जोड़ होता है ताजर तबके के
के साथ। देखिए ना, आप, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, आप एक गाड़ियों की एक फैक्ट्री यहां लगना चाहती है, यहां पर जो 3 गाड़ियां हैं वो एक इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर को और वजीर को कहते हैं कि गाड़ी का लाइसेंस ना देना 2-3 साल, ये हम आपको इतने पैसे मुस्तकिल हर गाड़ी पे देते रहेंगे। अब ये गठजोड़ है, ठीक, वो कहेगा नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मसला ये है, ये चेक करो, वो चेक करो, डिले, रेड टेपिज्म। अब ये मामला जो है, ये गठजोड़ तो होता ही ताजर उसके साथ है, जो बंदा जो ब्यूरोक्रेट को अफोर्ड कर सकता है, वो जो बैठा हुआ इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा। और फिर सबसे और बात देखें, रिफंड के अंदर क्या आपने रिफंड किया है, वो भी ना, वो तो टैक्स वाले जानेंगे, फलां जानेंगे जी। अच्छा, रिफंड के अंदर जो जो बकवास हो रही, इसका मतलब यह है कि वर्चुअली नैब का अदारा पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है। उसके पास अब सिर्फ, अब मुझे समझ बताइए कि सियासतदान निकल गए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कैबिनेट ने डिसीजन लेना है, ब्यूरोक्रेट निकल गए, ताजर निकल गए, बाकी निकल गए, तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें इमरान खान साहब को यूनिवर्सिटियां बना देनी चाहिए, कल ऑर्डर करें, खत्म करें इस बात को, मतलब मसला ये कुछ रह ही नहीं गया। राइट, सो अब अगर एक नज़र डालें इस तमीमी ऑर्डिनेंस से फ़ायदा किसको हो रहा है इमीडिएटली जो आपको नज़र आ रहा है, साबिक वज़ीर आज़म शाह खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस ख़त्म हो सकता है, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ नैब में LNG केस ख़त्म हो जाएगा, एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस ख़त्म हो सकता है, हुकूमती वज़रा के खिलाफ आटा चीनी स्कैंडल भी अब नैब के दायरे कार से बाहर हो गए हैं। सो ये तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट जा रहा है। नसीम ज़ारा साहबा, इसमें जो हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है कि हम एक नैब ज़दा शख्स से बात नहीं कर सकते, मुशावरत नहीं कर सकते, इसको आप उसूली मौक़िफ़ समझती हैं? देखिए, बिल्कुल उसूली मौक़िफ़ नहीं मैं समझती। आपको मैं तारीख़ के कहाँ के एग्जाम्पल दूँ कि आपका एक जो बड़ा मकसद होता है उसमें इंगेज तो आपको करना होता है। ये मेरा ख्याल है कि एक जो सबसे बड़ा एक मामला रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, उनकी नीयत बड़ी अच्छी है, उनकी वो चाहते हैं यकीनन मुल्क के लिए बेहतरी करें, लेकिन आपने ये तो हो ही नहीं सकता कि आप अपोजिशन को इंगेज किए बगैर चले। और ये कि मौक़िफ़, असूली मौक़िफ़ ये क्या हुआ, यानी कि आप देखें ये जो मुशावरत का मामला है उसमें अब ये कह देना कि जी शहबाज शरीफ पे केस चले, केस इतने लोगों पे चले, कन्विक्शन हो तो फिर ठीक है, बिल्कुल बात जायज़ है। और ये पोजीशन ले लेना कि हम नहीं करेंगे, हालांकि ये भी फरिया बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि एक तरफ आपने देखा तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉ मिनिस्टर क्या कह रहे थे और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कह रहे थे, और दोनों यकीनन ऑपोजिट बातें कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो मतलब कि वर्ड प्ले था, क्योंकि वो लॉ मिनिस्टर कह रहे थे कि मुशावरत अब प्रेसिडेंट करेंगे, तो मुशावरत होगी, तो यानी तो गवर्नमेंट तो PTI की है ना, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, तो मुशावरत प्रेसिडेंट करेंगे, उसमें भी मुशावरत होगी। लेकिन साथ साथ आप देखी थी फवाद चौधरी कहते हैं कि जी वो उनके साथ कैसे मुशावरत हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। मेरा मतलब कि ये मुझे लगता है कि इस तरह की बातें, इसमें वक्त जाया करना, वक्त गुजारना, बी क्लेवर बाय हाफ, फायदा कोई नहीं है। और मुझे लगता है कि जो नुकसान है वो खुद ही से, जो इमरान खान साहब की अपनी एक विजन रही है उसी को नुकसान होता है अल्टीमेटली। अगर ये अब जो नैब का पूरा किताब उठाएं, अभी औरिया मकबूल जान साहब ने और जनरल एजाज जवान ने बड़ी सहल तरीके से आपको दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि भाई आप ये मुझे बताएं इन सबकी गुफ्तगू के बाद आप क्या कहेंगी कि नैब ऑर्डिनेंस का क्या फायदा है जिस तरीके से ये लेके आए। अच्छा, इसकी बजाय अगर बैठ के सब बात करें, और आफ्टर ऑल 18th अमेंडमेंट आई थी ना, जितनी भी कंट्रोवर्शियल है, मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टी सब बैठी, सब ने उसमें एक कंट्रीब्यूट किया, और कंसल्टेशन में तो एक बरकत भी है, यू कैन डिसएग्री बट देन यू गेट टू सम पॉइंट ऑफ अग्रीमेंट। ये नैब ऑर्डिनेंस में अच्छी चीजें भी है, लेकिन अब किस नियत से आएंगे। अभी मैं सुन रही थी, आप कह रही थी कि ये शाहिद खाकान अब्बासी का केस खत्म हो जाएगा, इसका बट ये तो इशू है ही नहीं। इशू ये है कि इन प्रिंसिपल जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, और जिस तरीके से चेयरमैन का, ये तो कोई समझाए कि चेयरमैन का अनएक्सटेंडेबल क्यों हटाया। Somebody has to explain that. Nobody is explaining। तो ये इसमें तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि एक बहुत गलत तरीके से बात आगे गई है, और कहाँ आगे गई है फर्जा। अब आप देखेंगे कि
अगले कुछ दिनों में इसी पे लड़ाई झगड़ा होगा। उन्होंने रिक्वेजिशन करवाया है, इजलास सेनेट में अलग किया है, इन्होंने पार्लियामेंट अलग कह रहा है, फिर वो जॉइंट सिटिंग कह रहे हैं, अब इसी पे झगड़ा। तो पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि नॉन स्टॉप इन चीजों पे झगड़े हो? आगे दुनिया लगी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, इस पे उस पे हमारा। अब मुझे ये बताएं कि जो सेना की नीयत बुरी नीयत से नहीं किया, कि जो चीनी की सब्सिडी वाला जो इतना बड़ा स्कैंडल है, मुझे बताएं कि इसी गवर्नमेंट का है ना, उधर आपने कहा चीनी की सब्सिडी दे दें, उसके बाद दे दी, फिर आपने एक्सपोर्ट कर दी, फिर आपने इम्पोर्ट की उससे महंगी। तो ये बताइए ना, आई मीन अगर आप एग्जाम्पल सेट करें इस तरह से, और आप इंस्टीट्यूशन, इमरान खान साहब क्या कहते थे कि इदारे मजबूत होने, इन ऑपोजिशन उनका कॉन्स्टेंट ये होता था कि इदारों को मजबूत कर दें, तो इदारों को मजबूत करें ताकि आगे बात चले। मुझे लगता है कि पिछली बात निकालते निकालते तो मुल्क को कब्रिस्तानी बना देंगे, क्योंकि फायदा तो किसी का हो नहीं रहा। मुझे नहीं पता जहाँ जमा खर्च होता है, ये जो बाकी कॉलीग्स हैं वो शायद बेहतर बता पाए कि किसने कितना गेन किया है, किसने कितना रिकवर किया है, क्योंकि असल में तो आप जो आपके सामने मामला है वो ये है कि वेरी क्रिटिकल इश्यूज ऑफ गवर्नेंस, राइट, आई थिंक इग्नोर, जबकि आप इस पे आप फोकस करें, ये बहुत क्रिटिकल है अकाउंटेबिलिटी। लेकिन एक तरीके ऐसे हो कि अकाउंटेबिलिटी हो भी, ये झंझट जो चला हुआ जब से इमरान खान साहब आए, मुझे खुद सब पैनलिस्ट पे बात करें कि पिछले 3 साल में इतनी एनर्जी लगाई है सब ने, गवर्नमेंट ने, उनके वुज़रा ने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद, मगर उसका फायदा क्या हुआ? हाँ, ये उसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज बाय यू। और यकीनन जैसे कहा कि बहुत सारे और अहम मामलात हैं जो कि तवज्जो तलब हैं, उसमें से एक बड़ा अहम मामला अफगानिस्तान का भी है। वी टेकिंग अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। अफगानिस्तान से अमेरिका की रुखसती और तालिबान की आमद के बाद से पूरे खत्ते की सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। भारत का असर रसूख भी अफगानिस्तान से काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका। मोदी सरकार अफगान सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करती रही है, मगर तालिबान के आने के बाद भारत के वहाँ जो कायम दहशतगर्दी के अड्डे हैं वो भी ख़त्म हो गए। पाकिस्तान को इस सारी तब्दीली का फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है, मगर सारी निगाहें इस वक्त पाकिस्तान पर ही लगी हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन ने पाकिस्तान का दौरा किया है। मुशीर कौमी सलामती मोहिद यूसुफ ने उनके साथ मुलाकात में कहा कि आलमी बरादरी को अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए और तालिबान अबूरी हुकूमत से राब्ता रखने चाहिए। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास हुआ जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अफगानिस्तान में अदम इस्तेकाम की पाकिस्तान पर मुज़मिर असरात हो सकते हैं। इजलास में आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए फौरी मदद देने का भी जोर दिया गया है। अफगानिस्तान में अभी भी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। आज कुंदुज की मस्जिद में धमाके से 12 अफराद जाँ बहक हो गए। उसके साथ ही एक और मामला कल अदम TTP का भी है और पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई अहम मामला है जिसके हजारों की तादाद में अरकान अफगानिस्तान में रुपोश हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके हवाले से जब TRT को इंटरव्यू दिया तो एक स्टेटमेंट दी। लेट्स वॉच हिम। जनरल एजाज़, अब किधर खड़े हैं हम अफगानिस्तान के हवाले से खत्ते में, और TTP से जो बातचीत है उसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, सवाल के जवाब की तरफ आऊं या आपने पूरा जो नैरेटिव बिल्ड किया है उसकी तरफ? जी जरूर। देखिए, पहली बात यह है कि अगर अफगानिस्तान इस वक्त एक दफ़ा फिर बाय डिज़ाइन और बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टेबिलिटी का शिकार होता है तो यकीनन पाकिस्तान को इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ रेफ्यूजीज एंड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। ये एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी के आमाजगा बन जाएगा जो हम हरगिज़ नहीं चाहते। इसलिए हुकूमत बार बार जोर दे रही है कि मौजूदा वो लोग जिनके साथ अमेरिका खुद मुआहदा करके गया है उनके हाथ मजबूत करें ताकि वो डिलीवर कर सकें जो उन्होंने मुआहदे में कहा है। अब अफगानिस्तान के अंदर ये जो दहशत गर्दी अब हो रही है या आइंदा अगर उस सॉइल को दहशत गर्दी के इस्तेमाल के लिए डिनाई करना है तो तालिबान वो वाहिद कुव्वत हैं जिनको अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकग्नाइज करके सपोर्ट करे तो दे हैव द पावर, दे हैव द रिजॉल्व टू डू इट, क्योंकि वो किसी भी बैरूनी कुव्वत को, किसी भी गैर अफगान दहशत गर्द को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके एक पैरेलल फोर्स के तौर पे कभी भी नहीं देखेंगे। और ये वो वाहिद कुव्वत हैं जिन्होंने
18 मुल्कों की कोalition को भी रेजिस्ट किया, तो वो किसी आईसिस खुरासान हो या एनी रिफ्रैफ जो उधर आके बैठ जाता है 1000, 2000 या 5000 की तादाद में, तो उसका ये बिल्कुल मलिया मेट कर सकते हैं और अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इनके साथ ताउन इंटरनेशनल कम्युनिटी की लेड बाय अमेरिका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो उन्हें करनी चाहिए। अब रहा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत, देखिए इसमें दो बातें हैं। दुनिया में मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि ये जो इंसर्जेंसीज होती हैं, जो दहशतगर्दी होती है, जो मिलिटेंसी होती है, इसमें लास्ट मिलिटेंट को मारना या लास्ट दहशतगर्द को मारना कभी भी मुमकिन नहीं होता। ऑपरेशन एक एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं और उनकी विल को डिफीट करके उनको स्टेट के ताबे करने के लिए माहौल पैदा करते हैं। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की होल्ड होने से या हुकूमत आ जाने से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए वो जो सेंचुरीज का मजा था, वो जो एक सेफ हेवंस का मजा था, वो खत्म हो गया है। अब उनके लिए जमीन तंग हो गई है, अफगानिस्तान को वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और पाकिस्तान के अंदर इन सेंचुरीज के अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। हिंदुस्तान से बैठ के वो दहशतगर्दी कर नहीं सकते। लिहाजा उनके लिए जब जगह श्रिंक हो रही है तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हथियार डाल के तायब होकर हुकूमत पाकिस्तान के साथ, आईने पाकिस्तान के साथ पुरअमन जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं या मजबूर होकर इस पॉइंट पर लाए गए हैं कि वो हथियार डाल दें और हुकूमत की रिट को मानते हुए आईने पाकिस्तान के तहत आकर पुरअमन जिंदगी गुजारें। अब इसमें द डेविल लाइज इन डिटेल्स। कौन लोग होंगे, कैसे सरेंडर करेंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, उनको रियासत के आगे किस तरीके से आके अपना पाबंद बनाना पड़ेगा, उनकी पुलिस में रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन कैसे रखा जाएगा, उनकी जिम्मेदारी किसको सौंपी जाएगी, ये तमाम वो डिटेल्स हैं जिनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। बट इन प्रिंसिपल आई फील कि अगर तालिबान का बड़ा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हार्डकोर लोगों के अलावा एक बड़ा जत्था, बड़ी तादाद अगर हथियार डालने को तैयार हैं तो मैं प्रिंसिपली इसके खिलाफ नहीं हूं। राइट, तो आप कह रहे हैं कि आप बातचीत के हक में हैं और ऐसा हुआ है दुनिया में। और ये मकबूल जान साहब, इस वक्त जो खत्ते की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल एजाज अवान साहब के हक में उनकी जो नैरेटिव उन्होंने बताया है, मैंने बलूचिस्तान के अंदर वो 24 साल गुजारे हैं कि जिस जमाने के अंदर बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पुरअमन खित्ता था। आप अंदाजा करें कि 1973 के अंदर इंसर्जेंसी शुरू हुई थी, अताउल्लाह मैंगल की हुकूमत को ख़त्म की गई थी। ये तमाम के तमाम लोग जो थे अफगानिस्तान में चले गए थे और जहाँ पर एक किस्म की जैसे वही सूरत हाल थी, अगरचे कि उस वक्त वेपनरी जो थी वो सादा होती थी, लोग कम मरे थे। 3000 के करीब फोर्सेस के लोग जो थे वो शहीद हुए थे। 5600 लोग जो थे वो बलोच नेशनलिज्म वो मारे गए थे और उसके साथ साथ तकरीबन 16000 सिविलियन थे। जब ज़िया-उल-हक ने 5 जुलाई को आप माफ़ी का ऐलान किया तो आप हैरान होंगे कि उस वक्त अगर सब लोग ये सवाल उठाना शुरू करते थे कि हमारे 5600 बहुत इंपॉर्टेंट हैं या हमारे 3000 हैं, तो सिविलियन कहते हम, तो ये कभी भी ये आगे बात न बढ़ती। और वो बात बिल्कुल ठीक है, काम माफ़ी का ऐलान हुआ था और उसके बाद 1977 से लेके आप सोच नहीं सकते कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर इस हद तक अमन था कि 400 किलोमीटर दूर हम तफ्तान से बगैर किसी गनमैन के ट्रेवल किया करते थे और कोई खौफ नहीं था। लाखों लोग वहां पर थे, जितने कॉन्सर्ट्स, जितने मुशायरे, जितनी चीजें वहां पर हुई हैं। पहली दफा यानी 84 के अंदर बिजली वहां गई थी। वो रोडें जो बन नहीं सकती थी, कराची से कोयटा वाली रोड जो थी वो मुकम्मल हुई थी और उसके अंदर बिजली पहुंची थी। क्या कुछ नहीं हुआ था उस दौर के अंदर। और फिर वो अकबर बुकटी वाला जमाना आ गया, फिर खत्म हो गया। असल मसला ये है कि होता यह है कि इस समय आप इसमें सिर्फ एक सुन लीजिएगा, डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा आपको। वो बात आपने की कि आगे उनको कैसे, आज हम देखें जी कौन सा कातिल है कौन सा नहीं है। सबसे पहली बात यह कि आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ेगा, एविडेंस आपके पास नहीं होगा, फिर आप उनको मिसिंग पर्सन बनाते फिरेंगे, फिर एक और कंट्रोवर्सी शुरू होगी। इसके अंदर बैड टेस्ट नहीं होना चाहिए।
امن کے لیے ایک خاص صورتحال میں اس کو آگے بڑھانا چاہیے. جنرل صاحب جیسے کہ میں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے, اس وقت امریکہ کے مد نظر کیا کیا معاملات ہیں افغانستان کے حوالے سے؟ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کدھر ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے, مجھے ذاتی طور پہ کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ افغانستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. وہ جو ان کو شکست ہوئی, جس کا اعتراف ان کے ملٹری لیڈرشپ نے کیا ہے کہ یہ 20 برس کی غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوئی, اس ڈیفیٹ کا بدلہ وہ, کیونکہ جو جنرل ملی نے لفظ یوز کیا, انہوں نے کہا ٹوڈے our enemies are in command in Afghanistan. We have handed over the government to our enemies. تو اگر ابھی بھی وہ طالبان کو اپنا انیمی شمار کر رہے ہیں تو وہ ان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں ڈیلیبریٹلی. ان کے اسٹریٹجک مقاصد سرو ہوتے ہیں ڈی سٹیبلائز افغانستان. جو کنیکٹیوٹی کا نارتھ ساؤتھ اینڈ ساؤتھ نارتھ کنیکٹیوٹی ہے, اس میں رکاوٹ سب سے بڑی ڈی سٹیبلائز افغانستان ہے. افغانستان کے منرلز کو ایکسپلوئٹ کر کے لے جانے کا جو ایک موقع چائنا کے ہاتھ میں آیا, وہ ڈینائی کرنا ان کے لیے ضروری ہے. اور جو اسٹریٹجک بے دخلی امریکہ کی ہو چکی ہے اس پورے ریجن سے, وہ اپنی اسٹریٹجک ریلیونس تلاش کرنے کے لیے واپس آنا چاہتے ہیں. اور تمام تر دباؤ ان 8 نیبرز میں سے واحد ایک ملک پر آ رہا ہے, اور وہ ہے پاکستان. چین دباؤ نہیں لے گا, روس دباؤ نہیں لے گا, سینٹرل ایشین اسٹیٹ نہیں لیں گے, ایران کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکے پچھلے 30 سالوں میں. اب تمام تر زور لگایا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان ان کو ایئر سپیس کے استعمال کی اجازت دے دے, یا اگر ہو سکے تو بیسز دے دے, تاکہ وہ اوور دا ہورائزن آپریشن کر کے مزید تباہی افغانستان میں پھیلا سکیں. جو کام وہ 20 برس ملک کے اندر بیٹھ کے نہیں کر سکے, 1,40,000 ٹروپس اور تمام تر سپورٹ کے باوجود نہیں کر سکے, وہ اوور دا ہورائزن آپریشن میں سوائے کولیٹرل ڈیمیج کے کچھ بھی نہیں کر سکتے, انسٹیبلٹی کریٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ مورلی ارریسپانسبل ایکٹ ہے امریکہ کا, اور وہ ایک کیاس کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے اب وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. پاکستان کو چاہیے کہ اپنے اصولی موقف پر کھڑے رہیں اور کھڑے ہو کے بتائیں کہ ہم کسی جنگ میں آپ کے شراکت دار نہیں ہیں, اور اگر امن کے لیے آگے بڑھنا ہے تو پھر جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے ان کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ خطے میں امن آئے. اور یہ صاحب ابھی تک تو پریشر سسٹین کر رہا ہے پاکستان, لیکن کس حد تک ہم اس پریشر کو سسٹین کر سکیں گے؟ اور آج جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ کی پھر جو آئی ہے پریس بریف, اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ایک ایسی ایفرٹ ہو جس میں سب شامل ہوں. میں اس کو پڑھ دیتی ہوں. He directed the establishment of a dedicated cell to synergize various streams of efforts on Afghanistan across the government, including international coordination for humanitarian assistance. انہوں نے کہا کہ need for a coordinated policy effort. یہ coordinated policy effort میں کون کون ہوگا؟ دیکھیں میں بالکل اس چیز کو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. عجیب و غریب پسرت انٹرنیشنل منافقت چل رہی ہے. آپ کے سفارت خانے وہاں موجود ہیں, آپ کے سفیر وہاں آ جا رہے ہیں, آپ کی باتیں سارا کچھ ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. پاکستان کا سفارت خانہ بھی موجود ہے, آج کا امریکن سفیر بھی وہاں جا رہا ہے, اپنا ترک بھی مل رہے ہیں, چائنا بھی مل رہا ہے. یہ عجیب و غریب سب معاملہ ہے, اور اس کے باوجود صرف اس کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں پاکستان کو انڈیپینڈنٹلی اپنے لیے سوچنا پڑے گا, اور پاکستان کے ارد گرد ایک کیس بنایا جا رہا ہے, اور کیس یہی بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ایک نیوکلیئر اس کے ایسٹس ایسے ہیں کہ یہاں پر ایک دن اگر انسرجنسی شروع ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو یہ فنڈامنٹلسٹ کے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو ہم کچھ کریں. اور انڈیا کی طرف سے ایک پروکسی کی خطرہ بھی ہے. افغانستان اگر آج کچھ عرصے بعد بدامنی کا شکار ہوتا ہے, آپ سوچیں بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کی دبی خواہشیں ہیں کہ وہاں دوبارہ بدامنی ہو جائے, جن میں انڈیا شامل ہے, جس میں کسی نہ کسی حد تک ایران شامل ہے, جس میں کسی نہ کسی حد تک تاجکستان اور یہ ملک بھی شامل ہیں, جو کہ بنیادی طور پہ صدیوں کی ریولریز رکھتے ہیں. اب دیکھیں نا فور کے وہاں سے احمد شاہ مسعود کو جب مل رہی تھی سپورٹ تو تاجکستان سارا پشتونوں کے خلاف تھا, اور یہ لڑائی چل رہی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اگر آج کھل کے کھڑا ہو جائے, پاکستان along with افغانستان انڈیا کے مقابلے میں اتنی بڑی طاقت بن جاتے ہیں. اور آپ خود سوچیں, آپ ان کا کانفیڈنس, ان کی پروکسی کا ایکسپیرینس, پاکستان کی فوج,
یہ ایسا خطے کے اندر بیلنس اسٹرائک کرے گا کہ آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہی وہ خطرہ ہے نقطہ نظر سے وہاں کروایا جا رہا ہے جس کے پیش نظر بار بار اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے. انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات کا ادراک کرے. پاکستان کا ڈائریکٹ تعلق ہے جو بھی معاملات افغانستان کے ساتھ ہوتے ہیں, خاص طور پہ سیکیورٹی ایشوز پر. Until my next show, take care of yourself. Have a great weekend. اللہ حافظ.